Hello, teenagers. You all are welcome in Teen Talks, your voice, your story. Jai Hind everyone. Today we the teenagers welcome you all listeners and Ma'am Preeti Swami who is triple MSc in counseling, yoga and value education. So, since class ninth, I guess, I have been feeling heaviness in my chest, and I feel like there's always a dead weight inside me. I was a scholar since as long as I can remember, but now that I've entered in class 12th, the pressure of doing well in academics and getting into a good college is so high that it's hard to cope up with. I also feel the same way as my exam is approaching nearby and I have only 3 months to go. I have a lot of burden for 12th and CLAT as well, and I have been lately feeling a lot of anxiety and nervousness for my future. Okay, and you? Anxiety, well, I cannot really pinpoint one incident because there have been so many incidents. Some are small, some are big. Many times I've observed in my own that कई बारी I put my anxiety towards the wrong things, toward and like too much of it, and like when I actually have to have some anxiety for something, for suppose something big, I'm super preoccupied with something else, and Okay. then I get in the middle of it and I'm just lost. So, what about you? What is actually anxiety? Well, if I define it in psychological terms, anxiety is an emotion that is present in everyone. Okay. It's अगर आपने वो movie देखे Inside Out 2, which is very famous, so you'll know कि it is an important emotion to help you motivate and drive you to do things that you want to achieve. But anxiety in excess, that is a problem, and it can have adverse effects that Okay. on your I health. just wanted to ask you here that what type of a symptoms you see in yourself? So, I mean, there are some common symptoms that I show. It's like I sweat a lot, especially my hands, they become very sweaty, and there's a shortness of breath. Hmm. Sometimes I also shake and tremble, Hmm. or very rarely I also get an attack. But yes, these are the common symptoms. And what I about you? project. Your symptoms? I feel congested chest, I Okay. cannot breathe properly, and if it's very severe, I get panic attacks as well. Okay. And I'm not able to make correct decisions, and I don't know what's going on with me. Okay. What about you? I feel a sense of aggression. I feel heart palpitations. Many times, even randomly, I start feeling heart palpitations for no reason. That is like what another severe symptom of anxiety is. And like shortness of breath, trembling, loss of words, stiffness in the neck where I need to say things but like they're just not coming out, words are not coming out. Okay. Feel a rolling in my tongue, like बोल नहीं पा रहे also I have braces, Hmm. but I feel like it has always happened with me, so like I cannot, so I'm like kind of like both me. I also feel stiffness in my limbs when I have panic attacks, and when they're really really severe, like I would be crying. I would have this like this one weird way or pattern of breathing that is like very noisy. Okay. And that makes it even worse because then because of this continuous noise I get even more anxious, and I feel a sense of stiffness in my limbs that I cannot walk. Like if I have a fist, my hand is into a fist, it will not open. Okay. Yeah. Okay. I just That wanted is to like ask it's you. like a paralyze. Okay. But like I forgot the term for it. Okay. But it's like that. Okay, I just wanted to ask you that when this happens with you, so there is any trigger thing, like any person is there, any situation is there, any past memory is there, or any future worry is there. Is there anything which is triggering you, and then you actually feel such thing? As somebody who has been bullied a lot as a child and just has been like just hurt and had traumatic incidents, and I've always been in the hospital for medical reasons as well. I'm not going to get into that. Pretty much almost everything gives me anxiety, be it, and like many times I just try to ignore it, and most of the time I can ignore it, but then there are definitely times where I cannot, where I have to face it, and I'm just stuck. I feel like
I need to get out. Like I keep telling myself, there's like a dual voice in me, like get out, get out. But then the other voice is like, Okay. you're doing this, you're wrong, you're wrong, you're wrong. It's like it that Going just on. keeps going on in your head. Can I ask you one thing? That can you relate at which age it started with you? Honestly, really young. Okay. I would say How early it was? How early? Like any class you remember? Like, Third, fourth, fifth, anything? I think UKG. UKG. Upper Okay. What about KG. you? What were the trigger point you think in? For me, trigger points are basically my past memories, the bad ones, when I Okay. was not in good term with people Okay. around me. And now my trigger point is like when I have an argument with my parents, and then the past recreates, and I just keep on thinking about that, and just I cry a lot. So all these things are my Okay. trigger point. And in your case, what was the age when it started? It started 2-3 years ago, like in 9th, 10th. Okay. And what about you? Your trigger point? Well, I think I have some trigger points from both of their stories. But for me personally, I think when I get overwhelmed, especially because my family, they have a lot of expectations from me, right? From since I was a child, I have always done everything to the perfection. It's like I am meeting those expectations, but it's like after 10th, I burnt out. I spent all my energy in trying to achieve that expected marks that you want in board examination, and after that, it's like I'm lethargic and I'm just dragging through everything, and it's making me anxious because I know कि I'm not meeting their expectations. It makes me feel worthless. And as for when it started, well, I did have anxiety long before ninth. I would admit it. It usually revolved around bad friend circle. I did get out of it, but now I think it's more of a constant thing rather than bursts of it. ओके आई जस्ट वांटेड टू ऐड वन थिंग कि जैसे आपने पेरेंट्स की बात कही ना कि पेरेंट्स का थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, वो भी आपके लिए मतलब एंग्जाइटी का रीज़न बनता है कि मैं छोटी सी बात एज ए पेरेंट ऐड करना चाहती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं हम ना बचपन से, जब आप LKG UKG या फिर आप बॉर्न जब हुए थे तब भी जब आप लैप में थे अपनी मदर के या अपने फादर के, सो वहाँ से ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा अब मतलब मिल्क पीना शुरू कर दे या क्रॉल करना शुरू कर दे। तो वो जो एक्सपेक्टेशन होती है पेरेंट्स की, वो वहाँ से शुरू हो जाती है धीरे धीरे। वो चलना शुरू कर दे और वो अब दौड़ना शुरू कर दे, बोलना शुरू कर दे। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस है, इट्स नॉट कि पेरेंट्स अभी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इफ़ यू गो इन डिटेल, इट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे और इन द वूम ऑल्सो, कि हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारा बच्चा इस तरह से हो, हेल्दी हो। ये सारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है। तो जो आपका not even in the womb, the parents who cannot conceive, they wish कि like उनका बच्चा बच्चे का एग्जैक्टली। तो मैं जो आपसे कहना चाह रही हूँ वो ये है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो वो जो एक्सपेक्टेशन है वो बचपन से ही है। लेकिन एक स्टेज ऐसे आ जाती है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को हमने अपनी भी एक्सपेक्टेशन बना ली होती है। Exactly. जैसे आपके पेरेंट्स ने कभी आपको कहा हो कि आपको आपके ना मैथ्स में ना एक बार 10 on 10 आ गए, तो आप अप्रिशिएट कर रहे हो आपके पेरेंट्स ने, तो आपको लगता है कि अब हर बार ही मेरे 10 on 10 आना चाहिए, तभी मेरे पेरेंट्स शायद खुश होंगे। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि हमारी अपनी This एक्सपेक्टेशन is भी exactly what I feel. I mean, I don't blame them. My parents, they try to give me a leeway, to be honest. They don't, I mean, they don't want to put more pressure on me, but it's more myself because I know कि वो कभी like होता था कि I used to give them what they wanted. And even now, अगर मैं उनका like expectations नहीं meet करती, they would still be proud of me, but I'm not proud of myself उसके बाद. करेक्ट, यही आपसे मैं पूछती हूँ कि इसको एनालाइज कैसे किया जाता है कि हमारे अंदर ये एंग्जाइटी हो रही है, एनालाइज कैसे होता है? एनालाइज हम ऐसे कर सकते हैं कि जो सिम्टम्स हैं, तो अगर आप उन्हें नोटिस करो कि अगर वो आपको आ रहे हैं या फिर आप अनईजी फील कर रहे हो, तो वो ऐसे आप एनालाइज कर सकते हो। अब जैसे अगर मेरे को एंग्जाइटी हो रही है, तो आई नो, मतलब मेरे को ऐसे नहीं पता लगेगा मेरे को एंग्जाइटी हो रही है, बट मेरे को सिम्टम्स आ जाते हैं, लाइक मेरी चेस्ट कंजक्टेड हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, Okay. और मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। मतलब मैं अपने बॉडी पार्ट्स में से मेरे को लगता है कुछ पंप हो रहा है बहुत ज़्यादा। ओके तो इसलिए फिर मेरे को पता लग जाता है, एंड देन फिर वो एंग्जाइटी हिट करती है जब आपको रियलाइज़ हो जाता है कि आपको सिम्टम्स आ रहे हैं। जब ये होता है, अब आपको रियलाइजेशन भी होगी, तो उसके लिए आप क्या करते हो?
मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं हूँ लाइक थोड़ा अपने आप को सेपरेट कर कर अपने आप से बात करूँ कि अच्छा इट्स ओके, अपने आप को करना कि कुछ नहीं होता, नॉर्मल है, या ऑल इज वेल ऑल इज वाला सीन। एंड उसके बाद सॉल्यूशंस खुद ही ढूंढना, क्योंकि अगर आप किसी के पास जाओगे वो अपने एक्सपीरियंस से सॉल्यूशंस देगा। Correct. बट आपको पता आपकी लाइफ कैसी है, तो आपको अपने सॉल्यूशंस खुद ढूंढने हैं। ओके। तो इसलिए आप जाओ सपोर्ट के लिए, एंड बट आपको अपना प्रॉब्लम खुद ढूंढनी पड़ेगी, सॉल्यूशन भी खुद ढूंढना पड़ेगा, वो आपके लिए कोई नहीं कर सकता। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सब सुनते सबकी हैं लेकिन करते अपने मन की ही हैं। आप क्या करते हो जब आपको ये पता चल जाता है, एनालाइज हो जाता है? वेल देखा जाए तो फिर आई एम ऑलवेज एन ओवर थिंकर। माई पेरेंट्स, एवरी वन इन माई फैमिली एंड मेरे टीचर्स भी मुझे बोलते हैं कि यू ओवर थिंक टू मच, बट आई कैन स्टॉप इट। आई एम समवन हुज ब्रेन इज लाइक वर्किंग कॉन्स्टेंटली 24/7। तो कई बार टू शट दिस, like to calm my brain down, I either listen to music or read a book. I know it's more of like a denial thing rather than actually addressing the problem, but it's something that I can cope up with. And when I'm feeling intense emotions, or kai baar jab hota hai ki I'm almost close to a breakdown, I found a way to let it out through my writing. And yes, so that is something that I have felt, I mean, I'm proud of myself for doing, because writing has given me so much freedom to express what I'm feeling. And I know कि this is for me rather than anyone else. आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क यू बिकॉज मेरे अंदर भी वो एक थोड़ा सा एंक्शसनेस बढ़ रही है। सपोज एंग्जाइटी अभी हो रही है मुझे, है ना, और मैं किसी चीज़ को कर रही थी और मेरे को एंग्जाइटी हो रही है। अब इस सिचुएशन में मैं मतलब म्यूज़िक सुनने भी नहीं जा सकती, कभी कभी ऐसा भी होता है, या कहीं पे हूँ मैं और मैं उनको बिल्कुल मिड ऑफ द मतलब डिस्कशन के छोड़ नहीं सकती हूँ। तो उस समय मैं क्या करूँ कि अभी मैं आंखें बंद करके मेडिटेशन भी नहीं कर सकती हूँ, मगर ये मेरे साथ हो रही है। सो कुछ आप उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? आई मीन मैम, देखा जाए तो फिर मैं भी थोड़ा भी एंशियस फील कर रही हूँ, बट आई नो कि समटाइम्स यू जस्ट हैव टू गेट थ्रू इट एंड डील विद इट लेटर। आई मीन दैट इज व्हाट आई थिंक, Okay. बट नॉट द बेस्ट सोल्यूशन। Sometimes I just take a deep breath and I tell my mind कि you can feel anxious later, you can think about this later, just get through this first. आई वॉन्ट टू एड अप माई एक्सपीरियंस बिकॉज सब में एंग्जाइटी होती है। मैं ये नहीं कहती एंग्जाइटी आप ही जो डिस्कस कर रहे हो उनके साथ है, इवन हम सब में होती है। जैसे हम किसी को कहते हैं ना झूठ बोलना, झूठ बोलने की जो आदत होती है सब में होती है, उसका लेवल ऊपर नीचे वेरी कर सकता है। बचपन में हम बिल्कुल नहीं बोलते थे, अब हम टैक्टफुली बोलते हैं, तो इट्स लाइक दैट। ऐसे ही एंग्जाइटी हमारे साथ भी है, मेरे साथ भी है, सबके साथ ही है। बट जैसे आपने अपने पेरेंट्स को भी देखा होगा, स्पेशली फादर को, तो वो रेलवे स्टेशन पे खड़े हम झुक झुक के देखते हैं कि ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है, तो वो भी एक एंग्जाइटी का ही एक फॉर्म होता है। और फिर अंदर बैठते हैं, हम पूछते हैं कि कौन सी बोगी नंबर है, C2 है कि 56 नंबर सीट है, ऑल्दो वी नो एवरीथिंग, बट ये चलता है ना, इस तरह से होता है। तो ये जो एंग्शियस फीलिंग होती है, जो मैंने अपने उसमें किया है, वो SOS लगा रखा है। हमें मेडिसिन देते हैं ना डॉक्टर SOS की, तो SOS में कहते हैं जब बिल्कुल ही सिवियर हो जाए तब SOS लेना। तो मेरे लिए SOS का मतलब जो मैंने अपने लिए लिया है वो है स्टॉप, ऑब्जर्व और स्विच। जब मुझे पता चल रहा है कि मैं एंग्शियस हो रही हूँ, तो मैंने स्टॉप किया, ऑब्ज़र्व किया, मेरी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, या मुझे पसीना आ रहा है, या मेरी ब्लॉक हो गया, वोकल कॉर्ड ब्लॉक हो रही है, या जो भी सिम्टम्स हैं उसको ऑब्ज़र्व करने के बाद मैं स्विच करती हूँ, जैसे आपने कहा। तो मैंने अपने उस समय के तभी मैं एक और थॉट लेती हूँ और मैं क्रिएट करती हूँ उस मोमेंट को कि जो मेरे लिए अच्छा हुआ था पास्ट में। तो तभी उसी सेकेंड में जब मैं स्विच करती हूँ, आई फाउंड इट कि इट्स हेल्प मी। आई डोंट नो विद अदर्स, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि ऐसा भी होता है आपके साथ। आप क्या करते हो जैसे इस सिचुएशन में? मेडिटेशन काफ़ी हेल्प करती है। ओके। कि आप अपने आप को काम डाउन करो, पानी पियो आराम आराम से, और अपने आप को आइसोलेट कर लो थोड़ी देर के लिए। मतलब अगर हम जैसे कहीं फंक्शन में हैं, उधर आप आइसोलेट नहीं कर सकते अपने आप को, डीप ब्रीथ लो जितना कर सकते हो। और मैंने ये भी सुना है पानी कि पियो धीरे उस धीरे। समय जैसे जिस समय जिस स्थान पे हमें हो रहा है, जिस प्लेस पे हो रहा है, उधर से मूव ऑन कर जाना चाहिए, ऐसा होता है? हाँ, मतलब जैसे वहाँ पे अगर- मत बैठे रहो तो वो और आएगी, ऐसा होता है? हाँ, लाइक जैसे अभी मैं क्राउडेड जगह पर हूँ, अगर मैं वहाँ पे रहूँगी तो वो ज़्यादा हिट करेगी। हाँ, तो मुझे उस तो मैं सिचुएशन से बाहर बाहर निकलना है। जाकर लाइक ग्राउंड में चली जाऊँ जहाँ पे थोड़ी एयर वेंटिलेशन Yes, वगैरह हो। yes. डीप ब्रीथ्स करना काफ़ी हेल्प करता है आपकी मुझे हार्ट लगता है इसके पीछे जो साइकोलॉजी रीज़न है जो अभी स्ट्राइक हो रहा है, वो ये होता है कि हमारा माइंड, जैसे सपोज हम किसी गैदरिंग में बैठे हैं, तो माइंड को पता है कि दिस फेलो इज सिटिंग हियर, शी इज़ गोइंग टू सिट हियर। अब जैसे ही मैं कुछ मूवमेंट करती हूँ तो माइंड एक्टिवेट हो जाता है कि वेयर शी इज़ गोइंग, कहाँ जा रही है। तो वो एक्टिव हो गया, तो वो वाला पॉज हो गया शायद थॉट, और वो उधर एक्टिव हो गया कि मुझे कहाँ जाना है। क्योंकि आप ऐसे कहीं नहीं चले जाओगे ना, आपको कहीं ना कहीं तो मतलब देखोगे स्टेप्स हैं, तो आप कॉन्शियसली स्टेप्स नीचे उतरोगे। तो वो शायद ये स्विच होता होगा मेरे हिसाब से। आपको कुछ कहना? We are always denying it. If not, and like denial भी like बहुत बड़े साइड पे नहीं, छोटे छोटे साइड पे ही
अगर बच्चा गिर गया बचपन में, ऐसे जैसे बच्चा गिर जाता है, उसको चोट लग गई, चोट लगी है, उसको दिख रहा है, बट दे विल से नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. Yes, so दे वुड denial, correct. एड्रेस इट, Correct. अरे लग गया कोई ना, अभी हाँ. ठीक हो जाएगा. दे वुड से कोई ना, दे वुड लाइक डिनाई पूरा कि कुछ नहीं हुआ, कुछ हाँ, नहीं हुआ. you're right. Yes, yes, yes. See, प्लूटो भी काफी सालों पहले हमें पता नहीं था कि नहीं, हाँ. बट इट वाज डेफिनेटली देयर. Yes, now वी we नीड got टू it. एड्रेस इट. हमें काफी सालों बाद पता लगा. बिल्कुल. सिमिलरली हमें एंजाइटी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्पेशली पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. Yes. एक्सेप्टेंस भी ऐसे कि वो उनको खुद को अपनी एंजाइटी सबसे पहले एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि उनको एंजाइटी होती है. हाँ. मेनी टाइम्स दे आर नॉट अवेयर, और दे आर अवेयर ऑफ द टर्म, बट दे वोंट रेजोनेट विद इट बिकॉज दे आर लाइक मुझे तो कुछ नहीं, आई एम परफेक्ट, आई एम फाइन. यू आर नॉट फाइन. Yes. We can see you reflected Yes. in every single way you walk, talk, सब में दिखता सब में है, है. especially if your child has anxiety, उसको दिखेगा कि आपको Yes. भी anxiety है. करेक्ट. तो वेरी राइटली सेड बाय आवर टीनेजर्स कि ये जो एंजाइटी का जो आज हमने एक स्टोरी ली है, उस पे हमने देखा कि ये सबके अंदर है, और वो चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे कोई भी हम उम्र है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हैं. तो हमें सबसे पहले अपने को तो हम जैसे कबूल करते हैं, हम दूसरे को कबूल नहीं करते हैं. तो हमें दूसरे को भी एक्सेप्ट करना है, चाहे वो हमारा बच्चा है, हमारे पेरेंट्स हैं, और इस तरह से उसको कबूल करके उस पर जो SOS का मंत्रा है वो लगाना है, और रिकग्नाइज ज़रूर करना है, और उसको पॉजिटिव वे में देखना है, उसको किसी तरह से नेगेटिव टैग में देखना है. और जैसे आपने सुना इन टीनेजर से कि सल्यूशन हमारे ही हाथ में है, हम गए हैं और हमें ही निकलना है, और कोई हमें नहीं निकाल सकता. तो अपने आप से बात करो, एक डेडलाइन दो, एक टाइम दो कि कब तक, आखिर कब तक. ये वो चोर है जो घुस के अंदर बैठ गया है, और चोर कभी घर में अगर घुस जाता है तो हम उसको पनाह नहीं देते, उसको बाहर धकेलते हैं. तो इसी तरह से ये जो एंजाइटी का चोर है, इसे बाहर निकालेंगे और मिलकर इसको फेस करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड. हम अपने नए पॉडकास्ट में एक नए एपिसोड के साथ आएंगे, उसमें आपके लिए नया टॉपिक होगा. सो वेट एंड वॉच.